دنیا کا نور کون ہے؟ خدا یسوع مسیح جب دنیا میں اس نے کیا بولا کہ میں دنیا کا نور ہوں، اور نئے عہد نامے کے اندر خدا یسوع مسیح نہیں ہے کہ اس کی پیدائش تب خدا یسوع مسیح دنیا میں ہے، وہ اس سے پہلی دنیا میں ہے۔ وہ پہلی نور بن کے کیا کہہ رہا تھا؟ خدا کے ساتھ وہ تو آدم ذات بن کے ہمارے درمیان کا پایا۔ نئے عہد نامے کے اندر پتہ چلتا ہے کہ اس کی پیدائش ہوتی ہے عورت سے، جب وہ کہتا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں، جو مجھ پہ ایمان رکھتا ہے وہ کیا کرے گا؟ مجھ سے بڑے بڑے کیا کرے گا؟ کام کرے گا۔ جب ہم خدا پہ توکل کرتے ہیں، اس پہ راہ چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا خدا کام نہیں کرتا؟ کام کرتا ہے۔ پرانے عہد میں دیکھیں گے ابراہیم کی زندگی، خدا نے جب ابراہیم سے کلام کیا تو اس سے پہلے خدا نے ابراہیم کو کیا بولا کہ تو کیا کر؟ سب لوگ کلام کو پڑھتے ہیں، کیا بولا خدا نے ابراہیم کو؟ وہ چھوڑ دے، تو مجھ پہ کیا کر؟ توکل کر، اپنی راہیں مجھ پہ چھوڑ دے، اپنے رشتہ دار اپنے چاچے تائے کو چھوڑ دے اور اپنی راہیں مجھ پہ کیا کر؟ مجھ پہ توکل کر، اور تجھے میں کیا کروں گا؟ برکت دوں گا۔ تو کیا ابراہیم نے ایسا کیا یا نہیں کیا؟ ابراہیم نے کیا تو ضرور تھا، مگر اس نے ایک غلطی بھی کی۔ اس نے کیا کیا؟ رشتہ ناتوں کو تو چھوڑ دیا اور اپنے بھتیجے کو کیا کیا؟ ساتھ لے لیا۔ مگر خدا نے بولا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ سب کو چھوڑنا ہے۔ جب ابراہیم نے کیا تو ابراہیم کے راستے میں کیا رکاوٹیں ہیں؟ سب کو نام پڑھتے ہیں کہ رکاوٹیں ہیں؟ اس کے راستے میں رکاوٹیں ہیں۔ جب ابراہیم اور اس کا بھتیجا اس کے ساتھ تھا، ان دونوں نے کیا کیا؟ راستہ چینج کر لیا۔ ان دونوں کے لیے جب لڑائی جھگڑا ہوا، اس نے کہا کہ چاچا تیرا راستہ ہے تو میرا راستہ یہ ہے۔ ابراہیم نے بولا کہ تو دائیں جائے گا اور میں بائیں جاؤں گا، تو بائیں جائے گا اور میں دائیں جاؤں گا، میں تیرے پیچھے نہیں آؤں گا۔ اور اس کی راہیں کس کے اوپر تھی؟ اس کا توکل کس کے اوپر تھا؟ جب اسے پتا تھا کہ اگر میں دائیں راستہ بھی چن لوں گا، خدا میرے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ نور بن کے چلے گا، وہ دوپہر کو اور رات کو نور بن کے چلے گا۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رشتہ ناتوں کو تو چھوڑ دیتے ہیں، مگر اپنے بچوں کی راستوں کے پیچھے ہم کیا کرتے ہیں؟ انہیں فالو کرتے ہیں۔ اگر بچے ہیں وہ ماں باپ کو نہیں فالو کرتے، اگر ماں باپ ہے تو کیا کرتے ہیں کہ میرا بیٹا میری بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ صحیح کہہ رہی ہے، اس کا زندگی کا جو فیصلہ ہے جس کے کہنے کے مطابق کر دیتے ہیں۔ وہ راستہ جو کہہ رہے ہیں اس راستے میں کیا کرتے ہیں؟ ہم چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ مشکلیں پریشانیاں آتی ہیں۔ جب یسوع آپ کے اندر ہوگا اور خدا آپ کے اندر ہوگا اور آپ کی ساری فکریں اور راہیں اس پہ ہوگی، تو کوئی خطرہ، پریشانی، کوئی لانتیں، تصویریں، بیماری آپ کو روک نہیں سکے گی۔ ہلیلویا۔ تو جب ابراہیم نے راستہ اپنا چن لیا، ٹھیک ہے، پر ابراہیم کے راستے میں کی رکاوٹیں ہیں، اس کی برکات کے دروازے کھلنے شروع ہو گئے۔ وہ خوشحال، اس کی برکت برکت بڑھتی جا رہی تھی، اس کی بھیڑ بکریاں بڑھتی جا رہی تھی۔ جب اس کے بھتیجے نے رستہ چنا تو کیا وہ خطرے میں، پریشانی میں گیا؟ اس شہر کے اندر کیا ہوا؟ اس شہر کے اندر جب وہ پہنچا، وہ ایک ریاستی کا علاقہ تھا، وہاں گناہ کی حالت میں تھا۔ مگر جب اس کے بھتیجے نے رستہ چنا تو اس نے دیکھا کہ اس پرانے شہر کے اندر جاؤں گا اور مورا کے اندر جاؤں گا تو مجھے کیا ملے گی؟ میں برکت لوں گا، خوشحالی زندگی گزاروں گا۔ اور اس نے کیا کیا؟ اپنے اوپر توکل کیا، اپنی راہوں کو اس نے خود چن لیا۔ جب ابراہیم نے راہ چنی تو کیا اس نے برکت نہ ملی؟ تو وہی ابراہیم خدا کیا کہ چکا، جب اس نے بولا کہ اے مالک، اے باپ، تو شہر کو کیا کر؟ تو باہر نہ کر۔ کتنا سے بات شروع ہوئی تھی؟ کتنے لوگوں سے بات شروع ہوئی تھی ابراہیم کی خدا کے ساتھ؟ 100 30 50 سے شروع ہوئی۔ اگر آپ غلط راستے میں جا رہے ہیں اور آپ کے راستے کے اندر کی پولیس والا کی ایسی چیز آپ کو خطرہ روک لیتا ہے، تو آپ کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو 200 نہ پہلے گل شروع کرنے، 100 تے آ جائے گا، 50 تے آ جائے گا، 300 تے آ جائے گا، آخر کیا وہ پیسے اپنے انکریز کرتے ہیں۔ جب سفر میں آپ خدا کے ساتھ لے کے چلیں گے تو خدا آپ کو ہر مشکل پریشانی سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہلیلویا۔ آئی تھنک ہم پچھلے دنوں کے اندر گئے تھے نا، جب KL گئے ہم نا،
हमारी पूरी वैन को पुलिस ने रोक लिया। हम 10 लोग वैन के अंदर थे, तो पुलिस ने रोका कि आप कहाँ से आ रहे हो, काम करते हो। आई थिंक मैं सोया हुआ, तो मैं सिर्फ 1 सेकंड से गैर जुबान में दुआ की, ड्राइवर भाई निकला तो पुलिस का पूरा नाका है। जब खुदा पे अपनी राइट छोड़ी तो वो पुलिस अफसर कहता है कि आप जाओ, बाकी सब गाड़ियों ने रोका हुआ। हमारे उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं चेक किए, कोई पेपर नहीं चेक किया, कोई ये नहीं बोला कि मैं पासपोर्ट दो। क्यों? कि खुदा हमारे साथ था, वो बचाने की कुदरत है। इब्राहिम ने खुदा पे राह छोड़ी थी, इब्राहिम कामयाब हो गया। उसने कहा बाप अगर 50 ईमानदार निकलना है तो शहर को क्या करी, तो तबाह ना करी। उसने कहा चल ठीक है इब्राहिम, तुझे मौका है तो 50 ढूंढ ले। 50 से 45, 40, 35, 30, 25, 20, 10 तक बात आ गई। उसने बोला कि अगर 5 निकलना चाहिए तो 5 भी ना निकले। तो वहां फरिश्तों ने क्या बोला था कि तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखना, देखोगे तो मर जाओगे। आज हम अपनी राह तो छोड़ देते हैं, मगर अपने पीछे जब देखते हैं तो खतरे को देखते हैं। वो बकत को देखा आपने, इंग्लिश में डक कहते हैं ना, बकत को देखा ना आपने। वो जब चलती है तो कैसे चलती है? सीधा चलती है ना दाएं देखती ना बाएं देखती ना पीछे देखती, वो सीधा एक ही चीज में चलती है। तो अपनी मंजिल में पहुंचती है ना, तो हमने वो बनना है। जब खुदा पे राह छोड़ दी है ना, तो ना दाएं देखना है, ना बाएं देखना है, ना पीछे देखना है। आपकी तवज्जो, आपका ध्यान खुदा के ऊपर होना चाहिए कि मेरे आगे मेरा खुदा है, मेरी तवक्कल, मेरी राह उसके साथ है। जब खुदा आपके आगे आगे चलेगा तो समुद्र भी 2 हिस्से हो जाते हैं, पहाड़ भी मैदान बन जाते हैं, और बियाबान में क्या करता मन बरसाया जाता है। अब पीछे ना देखे कि हम पीछे ऐसे इधर थे, देखे कि खुदा हमें कहाँ लेके आ गया। अपनी राह अगर खुदा पे छोड़ते तो खुदा आपको नूर बना के चमकाएगा। वो नूर बनाता है। बादशाह के बेटे हमेशा बादशाह बनते ना, तुम्हारा बादशाह, तुम बादशाह के बेटे बन क्या करेंगे, हुक्मरानी करेंगे। यूसुफ जब गया था उसकी राय किस पे थी? खुदा के ऊपर जना। मुश्किल परेशानी में से गुजरा तो क्या खुदा ने से अपना बरकत दी या नहीं दी? उसका तवक्कल किस पे था? वो नूर बन के चमका ही नहीं चमका। जो भाई उसके खिलाफ थे वही भाई से सजदा करने के लिए, नाश लेने के लिए बैठे। आज जब खुदा पे आप तवक्कल करते हैं और आपकी राय खुदा पे होगी और सब चीजें आपके कदमों के नीचे होंगी। वही मालिक है, वही खालिक है, वही अव्वल है, वही आखिर है, वही अब्दी खुदा है। अगर वो जिंदा खुदा सब कुछ करने की कुदरत है तो दुनिया की कौन सी ताकत आपको रोक सकती है तरक्की में जाने की? जब आपकी राहें, आपके रास्ते खुदा के मुताबिक होंगे और आपके बच्चे भी बबरकत होंगे। इब्राहिम जब खुदा के साथ चला तो उसके बच्चे बबरकत हुए ना। इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा कहते ना, उन्हें खुदा ने बरकत दी, उनकी नस्लों को खुदा ने बरकत दी। मूसा की जिंदगी देखते हैं, मूसा का भी खुदा ने कलाम किया। उसने क्या, मैं क्या करता हूं, मैं तो ठीक से बोल भी नहीं पाता। तो हम लोग अक्सर मजाक उड़ाते हैं, पुत्र ते है तक लांदा है, बेटी बोल ही नहीं पाता, गूंगा बोल दे नहीं। तो जब हम तंज करेंगे वही खुदा गूंगो पैदा से काम लेने की कुदरत है। मूसा ने बोला कि मैं खुदा नहीं कर सकता। उसने कहा कि तुम मुझ पे तवक्कल कर और अपनी राह मुझ पे क्या कर, छोड़ दे। जब उसने मूसा ने अपनी राहें खुदा पे छोड़ी तो क्या मूसा खाली हाथ वापसी है? क्या उसके वो तकराने का लोगों ने नजायज फायदा उठाया? मूसा को खुदा ने बोला कि तेरा भाई हारून क्या करेगा, तेरा तर्जमा करेगा। आज तो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि गूगल ने हमें इतनी के सूरत दे दी जिस चीज के मैं समझ लगे हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। मैं अब हमें मिल गया मैं कि खतरा परेशानी तो हम पहले दे देते कि आगे कोई खतरा तो नहीं है, मगर उस वक्त उन लोगों के पास कोई ऐसा ऐप नहीं था, कोई मैप नहीं था कि उन्हें खतरा नजर आ सके। क्यों? कि उनके साथ खुदा था। फरोम के सामने जा खड़ा हुआ। आज आपके सामने जितने फरोम है, जितने दुश्मन है, जितनी रुकावटें परेशानी है, आज अपनी राहें खुदा पे छोड़ दो, सारी रुकावटें परेशानी आपकी जिंदगी से जाना
वक्ती तौर पे नहीं छोड़ के जानी, आपने आज मुकम्मल तौर पर छोड़ के जाएंगे, खुदा आपके साथ जाएगा और आपके सारे दोस्तों को खुदा क्या करता है, साफ करने की जरूरत है। मूसा ने खुदा अपनी राय छोड़ी तो मूसा खाली हाथ वापस आया, वो लाखों लोगों को साथ लेके आया, गुलामी में से निकाल के लेके आया। जब आपकी राहें साथ होंगी ना खुदा के, तो अल्लाह को पीछे आपके लोग पीछे आपके चलेंगे कि क्या इस बेटी की राहें कौन सी अच्छी हैं। हम कहते हैं कि फलाने का पुत्र ठीक है, अच्छी राह चलता पे, आपका ही बेटा सब चल सकता है, आपकी बेटी भी चल सकती है कि जब आपकी राहें और तवक्कुल खुदा भी होगा। मेरे सिसों काफी लोग अपने रास्तों को चेंज नहीं करते, दुआ हम करते हैं, अपनी जिंदगी को चेंज नहीं करते कि मैंने 3 मरतबा कलाम पढ़ लिया, रोजे रख के दुआ की है, मगर हम खुदा के ऊपर ईमान रखते हुए कमजोर हो जाते हैं। कोई परेशानी की रुकावट आती है तो हम कहते हैं ओ डर आ गया, डर आ गया। वो डर के आगे आपकी जीत है। फिरौन के आगे मूसा खड़ा हुआ तो मूसा ने पता किया फिरौन क्या हुआ, खुदा के आगे झुका और उसने बोला कि मूसा तेरा खुदा कौन है, जिंदा खुदा है, तो उन लोगों के क्या कर ले जा। तो जब आप अपनी जॉब पे जा रहे हैं, अपनी राहें खुदा पे छोड़ के जा रहे हैं, आपकी जॉब पे आपको भी तंग कह रहा है, रिश्तेदारों में से आपको भी तंग कह रहा है, तो खुदा उन्हीं के दरमियान आपको नूर बन के चमकाएगा। चाहे रात हो, चाहे दोपहर हो, चाहे दिन हो, वो आपके साथ होगा। हालेलुया। कितने लोग सदर मिस्र वजूद को जानते हैं? सब लोग जानते हैं ना। उनकी राय किस पे थी, तवक्कुल किस पे था? बादशाह ने बोला कि तुमने क्या करना है, मूर्ति को सजदा करना है। उन्होंने साफ बोले कि हमने नहीं करना। अभी मैं आपकी बात को क्लियर करने लगा कि कुछ लोगों की सोच है खुदा यीशु मसीह पैदाइश की किताब पैदाइश नए आयतनामे में मिलता है कि उनकी पैदाइश नए आयतनामे में हुई। जब बादशाह ने तीनों को आग की भट्टी में डाल दिया और लिखा कि आग के शोले तुझे जला न सकेंगे और नदियां तुझे डुबा न सकेंगे, समुद्र की लहरें तुझे छुपा न सकेंगी। जब तुम्हारी राह खुदा के ऊपर है तो कोई आग की भट्टी आपको जला नहीं सकेगी। जब वो तीनों आग की भट्टी में थे, उन्होंने क्या किया, आग को तेज कर दिया। आज हमारे दुश्मन की करते हैं, आज छोटी सी बात में किसी के साथ नाराज भी हो जाए तो पंप करने वाले लोग साथ ही बैठे होते हैं, वो पंप करते हैं, प्रेशर करते हैं कि तूने फलाने को सही किया। अब बड़ा पादरी बनता सी, अरे दुआ सुन ले, दुआ निभाती नहीं। हम लोगों की राह को जज करते हैं। तो जब वो तीनों आग की भट्टी में थे मेरे चीजों, वो तीनों अंदर क्या कह रहे थे, चल फिर रहे थे। तो अगर किसी को आग में से हल्की सी आग का वो अगर ऑयल का कतरा भी गिर जाए अगर उसके जिस्म के ऊपर, तो क्या आता है, जिस्म जलना शुरू हो जाता है, स्किन उतरनी शुरू हो जाती है। माँ बाप को टेंशन आ जाती है कि फटाफट ये पेस्ट लगा दो, टमाटर लगा दो, जो भी आता लगा दो कि मेरी बेटी ठीक हो। मगर वो तीनों जलते हुए यहाँ के अंदर क्या कह रहे हैं, चल रहे फिर रहे हैं। जब बादशाह ने देखा, उसने कहा कि हमने 3 डाले, ये चौथा शख्स इनके दरमियान कौन है? वो चौथा कौन था? मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह उनके दरमियान था। इसमें कि यीशु मसीह शुरू से हमारे साथ, वो इंसान बन के दुनिया में आया था कि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। जब उसने आंख को बंद किया तो बादशाह ने कहा कि इन तीनों को बाहर निकाल दो, तो वो जिंदा बाहर निकले। यहां तक कि लिखा कि उनके कपड़े तक न चले। तो जो खुद आप राह छोड़ते वो आपके जूतों को, आपके कपड़ों को, आपके बालों को, आपके जिस्मों को करता है, जलने नहीं देता। तो वो हमारी निगाह पानियां फांसा करने वाला है। तो बादशाह ने कहा कि तुम्हारा खुदा जिंदा खुदा है। उन्होंने कहा कि आज से हमने क्या करना है, इन तीनों के खुदा को क्या करना है, सजदा करना है। अगर हम ही खुदा के साथ चलते हैं और गैर कौमों की रास्तों में चलना शुरू कर देंगे तो हमारे बच्चे कैसे खुदा पे चलेंगे? आज देखते हैं कि माँ बाप लैदा है, बच्चे लैदा है, उन्हें पता ही नहीं खुदा का, उन्हें पता ही नहीं है कि खुदा है कौन है, खुदा यीशु मसीह कौन, उन्हें कलाम का नहीं पता।
वो तब नहीं पता कि जब हम बच्चों को टीच नहीं करेंगे। जब हमारे रास्ते इधर उधर होंगे तो बच्चों ने भी इधर उधर होना है। मलेशिया में आपने देखा ना कि एक घर के अंदर लोगों को 6-6 मजहब है। वो क्यों? माँ का मजहब अलग है, बाप का अलग है, बच्चा हिंदू है, क्रिश्चियन है, चाइनीज है, बुद्धिस्ट है, हर एक ने अपने अपने मजहब बनाए हुए हैं। उनकी राहें डिफरेंट है। तो क्या उनकी राहों में क्या रोशनी है? अंधेरे में। तो हम जिंदा खुदा के बेटे बेटी हमारे क्या नूर है। हमारे चेहरों के ऊपर क्या आता है? नूर आता है। ये कोई फेशियल कराने से, कोई क्रीम लगाने से, कोई ऐसे नहीं, ये नेचुरल नूर आपको खुदा की तरफ से मिलता है जब खुदा की तरफ चलते हैं। मूसा के चेहरे पे क्या था? खुदा का नूर था ना, वो चेहरा छुपाता था। तो जब खुदा आपके साथ तो आपका नूर चमकता है। आप दोपहर में भी चमकेंगे, सुबह भी चमके, रात के पहले भी नूर आपके ऊपर चमकेगा। जब नूर आपके अंदर है तो कौन आपको अंधेरे में रख सकता है? चिराग के अंदर कहाँ रखते हैं? ऊपर रखे हैं ताकि सबको रोशनी मिले। जब खुदा आपके साथ तो आपके घराने के अंदर भी खुशहाली होगी, नूर होगा और खुदा की बरकत होगी। दानियल नबी को सब जानते हैं कि दानियल नबी की जिंदगी कैसी थी। दानियल खुदा के आगे झुकने वाला, खुदा के ऊपर तवक्कल करने वाला, 3 टाइम खुदा को सजदा करने वाला। जब लोगों ने बोला कि दानियल क्या करता है, बादशाह तेरी बनाए खुदा को सजदा नहीं करता, वो अपने खुदा की तरफ क्या करता है? सजदा करता है। बादशाह ने कहा कि दानियल की किताब में पढ़ लेना, मैं सिर्फ आपको हवाला बताऊंगा। लिखा है कि बादशाह ने कहा दानियल को उससे मेरे सामने पेश किया गया। तो उसने इनकार कर दिया कि मैंने खुद तेरे खुदा को सजदा नहीं करना। अगर फॉर एग्जाम्पल आप जॉब पे हैं, या एक ऐसा शख्स आपको कहता है कि मैं आपकी जिंदगी बदल देता हूँ, आपको इतना पैसा देता हूँ कि तूने क्या करना है? इस खुदा को तूने सजदा करना है। अगर आपको पैसे की जरूरत भी हो और आपको पता है ये काम मेरी जरूरत के लिए भी है, तो क्या आप उस काम को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? कुछ लोग तो कर लेंगे जिन्हें खुदा का पता नहीं होगा, और जो खुदा के साथ होगा वो चीज को क्या करेगा? नजरअंदाज कर देगा, इनकार कर देगा कि मेरा खुदा बचाने वाला है। 10 लोगों को फौज ने पकड़ लिया। उन्हें पकड़ लिया तो उनसे पूछा जा रहा है कि उनके साथ एक लेडी से उनसे पूछा जा रहा है कि तुम खुदा की मनादी करते, खुदा पे तवक्कल करते हो? उसने क्या करता हूं, उसकी गर्दन काट दी। दूसरे ने पूछा, उसने क्या काट दी। तीसरे ने पूछा, उसकी भी काट दी। चौथे पे, 5वें, 6ठे पे आया। जब 7वें में आया तो उस लड़की ने जो उनके साथ थी, उसने आसमान पे देखा कि 10 ताज नीचे आ रहे हैं, आसमान से नीचे आ रहे हैं। जब साथियों से पूछा तो उसने क्या किया? उसने इनकार कर दिया। उसने कहा मैं खुदा की मनादी नहीं करता, मैं खुदा पे तवक्कल नहीं करता, मेरी जान छोड़ दी जाए। उन्होंने उसे पीछे कर दिया। 8वें से पूछा, उसकी गर्दन काट दी। जब 9वें से पूछा, उसकी गर्दन काट दी। जब 10वें पूछा तो एक ताज बाकी रहता था। वो ताज पता किसने लिया? वो लड़की जो उनके साथ खड़ी थी ना, जब उसने जिंदगी के ताज को देखा, उसने कहा कि मैं जिंदा खुदा को जानती हूँ। उसने कहा कि तुम मेरी गर्दन काट दे ताकि वो ताज मुझे मिल जाए। हालेलुया। जान देने तक वफादार है, तुझे जिंदगी का ताज मिलेगा। तो जब मुश्किलें परेशानी आती हैं तो हम खुदा से इनकार कर देते हैं, हम रास्ते चेंज कर लेते हैं। तो जब आप रास्ते चेंज कर लेंगे तो खुदा भी आपसे पीछे हट जाएगा। कभी आपने खुदा से बात की है? जब दुआ करते हैं उससे रूबरू बातें की है, ऐ बाप, ऐ मालिक, मैं तेरी बेटी तरह बेटा हूं, उससे बातें की आपने? आपने कभी खुदा के साथ बातें की हैं? आपने कभी आपने सामने कुर्सी रख के खुदा को सामने बढ़ा के बातें की हैं? आपने कभी बात नहीं की खुदा के साथ? आपने हमेशा खुदा के सामने अपने मुश्किलें मसाइल को रखे। ये खादमी, ये नबी खुदा के साथ बातें करते थे। इब्राहिम खुदा के साथ बातें करता था। दानियल, सदरक, मिशक, अबजूद, मूसा, ये खुदा के आगे बातें करते थे, रूबरू बातें
باتیں کرتے تھے وہی چیز کو کہتے تھے کہ خدا ہمارے سامنے بیٹھا. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سامنے ہمارے ٹیبل کے پاس بائبل پڑی ہے. وہ بائبل نہیں, وہاں خدا کے ذریعے خدا خود آپ کے سامنے بیٹھا. ایک ٹیچر آپ کو پڑھانے آتا ہے, ٹیوشن لینے آتا ہے, تو آپ اس کے سامنے بکس رکھتے ہیں نا, تو سب سے پہلے آپ کو کیا کہتے ہیں, وہ کیا جو کام دیا تو وہ پوچھتا ہے, ہوم ورک کیا دیتا ہے وہی پوچھتا ہے نا کہ بیٹا تم نے کیا 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 نہیں کیا. اگر ایک ٹیچر ہو کے آپ سے پوچھتے ہیں نا, تو باپ ہے جو ہماری بائبل ہم پڑھتے ہیں وہ ان باتوں کو بھی پوچھتا ہے, کیا بیٹی یا بیٹا تم مجھ پہ توکل کرتی یا نہیں کرتی. وہ ہمیں نظر تو نہیں آتا نا جسمانی طور پر, مگر روحانی طور پر ہمارے ساتھ ہمارے اندر ہوتا ہے, ہمارے ساتھ وہ چلتا ہے. جو کلام کی باتیں کرتے ہیں وہ کلام کو پڑھنا نہیں ہے, اسے اپنے دل کے اندر رکھنا ہے تاکہ وہ ہماری نسلوں کے اندر کیا ہو, ٹرانسفر ہو. اس لیے داؤد کہتا ہے کہ میرے تیرے کلام کو اپنے دل کے اندر رکھ لیا. وہی کلام سلیمان کے اندر ٹرانسفر ہوا. تو سلیمان بلا کیا کہتا ہے کہ ایسی راہیں بھی انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے, انہیں کی انتہا میں کیا ہے, موت کی راہیں. وہ کیوں کہتا ہے, کیونکہ اس نے اپنے راستے چینج کر لیے تھے, اس کی راہیں چینج ہو گئی. جب اس نے شادی کی, لونڈی کے پیچھے جانا شروع کر دیا, بت پرستش کرنے شروع کر دی, تو اس کی ساڑی پھڑ کر جانی شروع ہو گئی. تو یہ نا کہ ہم دعا کہہ رہے ہیں, دن کا ہم دعا کہہ کر راستوں کو ہمارے راستے کوئی اور ہے, ہمارے بچوں کے راستے کے کچھ اور ہے. آج ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرا راستہ میرے باپ کا راستہ ایک جیسا ہے یا نہیں. میرے بچے میرے ساتھ ایک راستے پہ چلے نہیں چلے. اگر گاڑی کا ڈرائیور, آپ کو بات بتا رہا ہوں, اگر گاڑی کا ڈرائیور آپ کو غلط راستے پہ جائے گا تو آپ ڈرائیور کو بولیں گے نا کہ بھائی میرا راستہ تو یہ ہے نہیں ہے, میں آپ کو کچھ اور بتا رہا, تو مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے, کہیں گے نا. تو وہی خدا جس راستے پہ چلتے ہیں, اگر آپ ادھر سے بھی ہوگا خدا کو بھی دکھ ہوتا ہے کہ میری بیٹی میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے. اگر گاڑی کے ڈرائیور کو باتیں کرتے نا تو وہ خدا بیٹھے, اور ابلیس بھی خوش ہوتا ہے جب غلط راستے پہ آپ چلتے ہیں. ابلیس بھی کہتا ہے کہ دیکھ لے تیری بیٹی بیٹا کدھر جا رہے ہیں. اگر آپ کے گھر کا ڈرائیور اور آپ کی راستے ٹھیک ہے نا, تو وہی راستے پہ آپ کا بیٹا بیٹی چلیں گے, آپ کی منزل وہ ایک ہی ہوگی. آپ کے راستے کے ڈرائیور بھی دیکھیں جب گاڑی چلاتا ہے, وہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں نہیں دیکھتا نا, وہ سیدھے دیکھتا ہے نا, تو اپنی منزل پہ پہنچتا نہیں پہنچتا. جب ہلکا سیدھے دیکھے گا تو اس کی گاڑی کیا ہوگا, ایکسیڈنٹ ہوگا. جب پیچھے دیکھے گا تب بھی ایکسیڈنٹ ہوگا. جب سیدھا دیکھے گا تو اپنی منزل پہ جائے گا. تو آج ہماری منزل کون ہے, ہمارا خدا ہے, اور اپنے یسوع کو اپنے ساتھ اندر لے کے جانا ہے. ہمارے راستے اس کے ساتھ چلنے چاہیے. ہلیلویا. جب پترس کو خدا نے چنا تو اس نے کہا کہ اپنی رائے تو مجھ پہ چھوڑ دے. تو آج سے تو کیا بنے گا, ماہی گیر نہیں, کیا بنے گا, آدم گیر بنے گا. تو وہی پترس نے جب اپنی راہیں خدا پہ چھوڑ دی, جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مچھی پکڑنے والا, ماہی گیر, خدا کے ساتھ چلنے والا, اپنا سب کچھ چھوڑ کے جب چلے گیا, تو وہی مچھی پکڑنے والے کے آگے لوگ کیا کرتے تھے, سونا چاندی روپیہ پیسہ لے کے آتے تھے, اس کے پرچھاوے سے اس کے سائے سے کیا ہو جائے, شفائیں ہو جائیں. آج سونا چاندی کو بھول جائیں, سونا چاندی دینے والا آپ کے اندر ہوگا, آپ کے ساتھ ہوگا, سب کچھ آپ کے پیچھے چلے گا. آپ کو سنیارے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بادشاہ کا بادشاہ وہ خود آپ کے درمیان میں چیزیں لے کے آئے گا. ہلیلویا. ہم جاتے نا سونا لینے کے لیے پرائز پوچھتے ہیں, کبھی آپ نے پوچھے کہ میرے خدا کے اس کے بیٹے کی کتنی پرائز اس نے اس لیے پہ بہا دی. سونا چاندی نہیں, آج یسوع کو خدا کو اپنے ساتھ لے کے جا, ساری چیزیں آپ کو مفت میں مل جائیں گی. جب ان ابراہیم نے, موسیٰ نے, ان ساری چیزوں کو, دانیل نے اور پترس نے ان ساری چیزوں کو اپنے پاس لے لیا, تو ساری چیزیں ان کے ساتھ تھی, اور ہمیشہ کی زندگی ان کے ساتھ تھی. آج بائبل میں کیوں ان کا ذکر ہے, فلانے لوگوں کے کیوں ذکر نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے خدا پہ توکل کیا. الیشا خدا کے ساتھ وفادار تھا, اس کی ہڈیوں سے مردہ زندہ ہوا. اسی کے نوکر نے یہ کیا, اپنے راستے چینج کر لیے. جہاز نے تو کیا لیا, موت لے لی, کول لگ گیا, راستے چینج کر لیے. تو آج ہمیں ان رستوں کو نہیں اپنانا, ہم نے خدا کی رستوں کو اپنانا, اور خدا کو اپنی راہیں چھوڑ کے جانی ہے, پکی پکی چھوڑ کے جانی ہے.
आज रिश्ते नाते जो मर्जी कह, आज पक्की खुदा ना बना के जाने की, आज पक्का बूटा ला के जाना ताकि खा के साढ़े घर आए, पीछे मुड़ के नहीं देखना। आज अपनी झोलियों में बरकत लेके जानी है आपने। ये नहीं कहा बाहर जाए कि आप कहे कि वही घर जाके ये परेशानी नहीं, परेशानी फिक्रें यहाँ छोड़ के जानी है, तो खुदा आपके साथ है। हालेलुया। आखिरी हवाला यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब उसकी 6 आयत में लिखे, यीशु ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आया। आज हमने किसके पास जाना है? बाप के पास जाना है, कि वो राह, हक, जिंदगी वो ही है, और उसके वसीले से बगैर कोई खुदा के पास नहीं है। और किसी के प्राइम मिनिस्टर को मिलना तो हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, ठीक है। जब खुदा हमारे साथ है, यीशु हमारे अंदर है, तो हमें कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है अपने बाप को मिलने के लिए। उसने हमें इख्तियार दिया कि मैं अपना मदर कार्ड तुम्हें दे के जाता हूँ। पाक रूह है जो हमारी दुआओं को सुनता है, जो हाय भर भर के शिफायत करता खुदा के आगे। आज जब दुआ करते हैं, खुदा पे तवक्कुल करते हैं, तो ईमान है कि खुदा ने आपके अंदर एक नया रूह जारी कर दिया। अपने रास्तों को चेंज कर लें। आपका बेटा गलत रास्ते से बोले कि बेटा नहीं, ये रास्ता गलत है, ये रास्ते पे चल, ये पेशा की जिंदगी। शॉर्टकट नहीं अपनाना जहाजी की तरह, मेहनत का रास्ता अपनाना है। जब मेहनत में देखिए कि अगर काल भी है, परेशानी भी है, और आपका तवक्कुल खुदा के ऊपर है ना, तो खुदा आपको 100 गुना देने की बरकत रखता है। इसहाक को खुदा ने 100 गुना बरकत तब दी थी जब शमूएल के अंदर क्या था? काल था। 100 गुना बरकत दी थी, तो क्या वो खुदा में 100 गुना बरकत नहीं दे सकता? आज अपने बेटे को बोले अपने साथ बैठे कि आज मेरा तवक्कुल रहेगा इस पे, खुदा पे है। सोचिए, फिक्र निकाल दे कि बीमारी है, परेशानी है, बेरोजगारी है, सब कुछ आप छोड़ के चले जाएं। आज वो खुदा आपको देने की कुदरत है, उसके खजानों में कमी नहीं है। आपके बैंक के बैलेंस खत्म हो जाएंगे, मगर उसके बैंक के बैलेंस खत्म नहीं होने, वो खालियों को भरने की कुदरत है। एक छोटी सी मिसाल है आपको बता दूं। अक्सर लोग ना खुदा से मांगते हैं, तो समटाइम खुदा में देख के समाता भी है, और समटाइम हमारी उतनी जो होती है जितनी खुदा में बरकत देता है कि उस बरकत को हम क्या करें? संभाल सके। एक शख्स डेली खुदा पे तवक्कुल करके दुआ कर रहा है कि खुदा कि तू डेली मुझे 2 रोटियां देते, तो ऐसा कर तो मुझे इकट्ठी रोटी दे दे। सुबह को 2 देता, रात को 2 देता, दोपहर को तो इकट्ठी मुझे देता कि तुझे बार बार मैं ना कहूँ। वो रास्ते में चलता चलता दुआ कह रहा है, तो फरिश्ते ने उसकी दुआ को सुन लिया। उसने कहा कि जो तू दुआ कह रहा है, तो तुझसे इकट्ठी रोटी दे दे खुदा। कहता है नहीं, मैंने नहीं देनी, ये सहाय करेगा। कहता है जिस रास्तों पे चल रहा है, ये क्या करेगा? सहाय करेगा। इसकी तमन्ना कितनी? 2 रोटी की। कितनी की? 2 रोटी की। 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, 6 बन गई। उसने कहा एक मिनट तो दे के चेक तो कर। ये खुदा में दे के क्या करता है? चेक भी करता है कि हम क्या करते हैं। ज़ाया तो नहीं कह रहे, बाद में बरकत मिल जाती है, वो बरकत हम क्या करते हैं? अपने ताकि रखते हैं। अगर हमारी लॉटरी निकल आए, जो हमारा ऐसा काम हो जाए, हम कहते हैं कि तो बताने नहीं उसे। और किसी को ख्वाब में रूह में खुदा मिल के जाता है, रूह में कलाम करता है, खुदा का रूह आता है, तो हम क्या करते हैं? किसी को बताते नहीं है। अगर बता भी दें तो हमारे अंदर क्या आता है? एक वो आता है कि मगरूर आ जाता है कि हमें खुदा रूह मिल के गया, खुदा के रूह ने मुझसे क्या किया? बातें की हैं। ऐसे ही ना हम दूसरे इंसान को कहते हैं ये इंसान ने क्या करना है? झुंडने जाना है, नशा करता है, नशेबाज है। हमें किसी को जज नहीं करना, उसकी राह को नहीं देखना। वो हो सकता है हमसे ज्यादा वो दुआ करता हो। गुनाहगार शख्स दुआ कह रहे थे ना, खुदा ने उसकी दुआ को सुना। तो जब भी शख्स खुदा से मांग रहा, खुदा ने बोला कि ठीक है, इससे मैं दे देता हूँ। उसने दे दिया, उसके घर का नाच बढ़ गया। आज भी लॉकडाउन में हमने देखा है कि काफी लोगों को खुदा ने हेल्प की, लोगों के घर बढ़ गए, नाच बढ़ गया। कुछ लोगों ने इनकार किया कि हमारा नाच हमें ना दें, किसी और को देना, हमारे घर में ज़ाया हो रहा है। कुछ लोगों ने कहा नहीं जी, आन दो आन दो आन दो आन दो, कोई नहीं खराब होते। जब उसे खुदा ने दिया तो उसने क्या किया कि सोचने लग गया कि मैं अपनी रस्तों को चेंज कैसे करूं। मैंने तो खुदा से मांग लिया, खुदा ने मेरा खजाना भर दिया।
अब उसे तमन्ना 2 रोटी की थी। अब जिस रास्ते को चल रहा है ना, खुदा ने बोला कि इस रास्ते पे चले, तो खुदा ने उसके रास्ते चेंज कर दिया। खुदा ने उसके रास्ते को यहां से घुमा के यहां ले आया। तो जब इधर लेके आया तो खुदा ने उसकी सोच के अंदर एक बात डाल दी। उधर जब बैठा है तो उधर देख रहा है कि लंगड़े, मांगने वाले, फकीर बैठे हैं। तो उसके दिल के अंदर खुदा ने बात डाली। इधर वो क्या परेशान है कि मैं इतने नाश्ते क्या करूं, जाया हो जाना है। खुदा ने क्या किया, उसके दिमाग को जांचा, उसे उठा के वहां रख दिया। ला के देखता है इधर के लोग भूखे बैठे हैं, प्यासे बैठे हैं। उसके अंदर एक खुदा ने क्या डाली, खौफ डाल दिया। उसने कहा नहीं कि अपना अनाज मैं इसे देता हूँ ताकि जाया ना हो। उसने क्या किया, अपना अनाज उसने ला के देना शुरू कर दिया। खुदा उसके पीछे बढ़ता जा रहा है। खुदा की प्लान डिफरेंट है। मूसा का खुदा ने कलाम किया था ना, मूसा का खुदा कहता है कि जाके फिरौन के साथ क्या क्या लोगों को चला। तो वहां से मूसा को खुदा कलाम करके वहां फिरौन का सख्ती दिलो कौन कह रहा था, खुदा ही कह रहा था कि देखिए खुदा के प्लान के दो मूसा कलाम कह रहा है। तो इस तरह से खुदा ने राशन पानी दे दिया और उससे कहते हैं इन लोगों के अंदर तो क्या कर राशन तकसीम कर दे। उसने क्या किया, अपना राशन उठाया, सारा राशन लोगों के दरमियान बांट दिया। तो कुछ दिनों के बाद फरिश्ता है, तो फरिश्ते ने कहा कि खुदा तू तो कहता था कि अब खुदा भी देखे खुदा है ना। फरिश्ते ने खुदा को कहा कि तुम तो कहते थे कि ये अनाज ज़ाया कर देगा, ये तो तुम इसका गड़बड़ते जा रहे हो। कहता मैं क्या करूं, मैं से दे रहा हूँ लोगों को बांटी जा रहा है। वो खुदा मालिकों का मालिक, उसके प्लान डिफरेंट है। जब हम उसकी राह पे चलते हैं तो हमें लीड भी करता है, गाइड भी करता है, हमें वो क्या करता है, हिकमत अक्ल भी देता है। जब अपनी मर्जी से चलेंगे तो अपनी मर्जी तक ही रहेंगे, फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। आज 2012 के अंदर मैंने एक रास्ता को चूज किया था। वो चूज नहीं था, मैंने अपनी ख्वाहिश थी कि बस जैसे कि खुदा ने जिंदगी चेंज कर दी हो। तो मैंने अपने घर से चोरी की फोन लेने के लिए। मेरे दोस्त ने बोला कि फोन ले, तो मैंने अपने घर से चोरी की। तो तब मुझे पता चला कि खुदा काम करते हैं। तो मेरे वालिद साहब ने प्रे करवाई पादिश कृष्णा उसके बेटे से। उसने बोला कि जिसने भी चीज़ उठाई है खुदा कर उसे बेचैन कर दे। मैंने कहा कैसे पॉसिबल है कि ऐसे दुआ के साथ चोर पकड़ने होते थे, सारे चोर पकड़े थे। तो हम गाड़ी में आ रहे थे तो पापा मेरे शेयर कर रहे थे अपने दुकान की लड़की के साथ भी ऐसे ऐसे करके अंदर चीज़ चोरी हो गई है। तो जॉइंट फैमिली के अंदर तो कोई डर था कि वो बच्चों ने ले गए हैं। तो तब खुदा के रूह ने मुझे छुआ। तो मैंने फिर बोला कि गाड़ी रोक के आप करते क्या वो चीज़ मैंने चोरी, मैंने ला के भी नहीं दी अपने के। मैंने फ़ोन लेना अपने दोस्त से लिए। इन्होंने कहा कि आपने क्यों किया, मैंने क्या चोरी। आज मेरी ज़िंदगी चेंज है तो मेरे वालिद साहब के वसीले से ज़िंदगी चेंज है। इन्होंने मेरी बाजू पकड़ी 2012 के अंदर, मुझे याद है जनवरी का महीना था, सर्दी में। इन्होंने बोला कि खुदा पे तवक्कल कर, अपनी राह खुदा पे छोड़ दे, खुदा तुम्हें सब कुछ दे। उसके बाद मैंने कंटिन्यू चर्च जाना शुरू किया। मुझे ये 100 रुपये देते थे हफ्ते का, वो 100 रुपये मैं डाल देता था। 3 महीने के बाद खुदा ने मुझे इनके वसीले से नया फ़ोन लेके दिया स्टडी करने के बाद। उसके बाद मुझे जॉब करने का तवक्कल था कि पाकिस्तान के अंदर लोग लाखों रुपये देते हैं गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। तो मैंने 1 रुपया नहीं दिया था। मैं IT के ऑफिस में फ्री कोर्स जॉब करने गया, कोई इंटरव्यू नहीं, मेरा खुद लेटर बन गया मेरी शॉप के ऊपर आया था कि मंदिर को आपने जॉब पे जाना है। जब मैंने खुदा पे राय छोड़ी तो मेरी स्टार्टिंग उस वक्त के अंदर आई थी 15,000 सैलरी लगी थी। कभी मैं कल ही बता रहा था हमारा, क्योंकि मेरी गवर्नमेंट जॉब बड़ी अच्छी थी। सुबह 8 बजे जाना, 4 बजे छुट्टी, हफ्ता दवा छुट्टी। अगर आज मैं जॉब पे होता तो आज मेरी कम से कम पाकिस्तान के अंदर 60-70,000 सैलरी होती थी। 2012 की बात बता। तो सब कुछ मेरे वाला साहब की वजह से, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी की राहें चेंज की। शायद ना गुनाह करता मेरे रास्ते ना चेंज होते तो आज इनके से मेरी ज़िंदगी भी चेंज हुई। मैंने खुदा पर तवक्कुल किया। आज खुदा वो काम भी कह रहा है और मुझे इस्तेमाल भी कर रहा है।
تو آج میں بھی آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے رستوں کو خدا پہ چھوڑ دو، وہ سب کچھ دینے کی قدرت ہے۔ آج خدا کے بولے کہ مجھے بیٹیاں بولنے کہ مجھے دبورا بنا دے، روت بنا دے، آستر بنا دے، تاکہ خدا کی راہ کو دیکھیں گے، خدا برکت دے گا۔ بیٹے بولے مجھے ابراہیم بنا دے، دانیل بنا دے، یوسف بنا دے، تو خدا آپ کو برکت دے گا۔ آج آپ نے خدا کو اپنے ساتھ لے کے یہ عہد اپنے دلوں کے اندر رکھ لیں کہ اپنی راہیں خدا پہ چھوڑ دو، اس پہ توکل کرو، سب کچھ کرنے کی وہ سب کچھ کرے گا۔ اس نے یہ نہیں بولا کہ آدھا سب کچھ کرنے کی وہ قدرت رہتا ہے۔ ہلیلویا، خدا سب کو برکت دے۔ کتنے لوگوں نے کلام کے وسیلہ سے برکت لی اور کتنے لوگ کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا؟ زوردار تعلیم بغیر تلاوت کرتے ہیں اس اپنی زندگی میں لیا کرے، اس کے مطابق زندگی بھی گزارا کرے، یقیناً آپ کی زندگی سے نہیں رہے گی۔ ہلیلویا، کہ وقت ہے کہ ہم اب ہتھیار نذرانہ خداوند کے حضور نظر کریں، اپنی بانیوں کو کھولیں، اور میں کاکی کو بولوں گا کہ وہ آئے اور سب سے ہتھیار